This call is now being recorded. Thank you. Okay, so okay, so as we know that these are few protocols which we have already seen, like simple protocol. The simple protocol is the one in which there is no flow control, there is no error control. It's just simple protocol. You wanna send, then you can send the data. Okay, you are not going to receive any acknowledgement. You are nothing else. Okay, so the transport layer at the sender gets a message from its application layer. Okay, from its application layer makes a packet out of it and then send the packet. Simple. Okay, transport layer at the receiver side packet from its network layer. Obviously at the receiver side it will take the packet from the network layer, मतलब अपने नीचे वाले से लेगा. Extract the message from the packet and deliver the message to the application layer. Sender side में है तो ऊपर से लेगा. If it is at the sender side, then it will accept the message, it will accept the data, it will accept the packet from the application layer, just wrap it up and then send it to the next level, that is on the down level. कौन है नीचे आपका? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे कौन है? नेटवर्क लेयर, वो नीचे वाले को देंगे. और रिसीवर साइड पे it will accept the data, it will accept the packet from the network layer and it will just extract the message and the data will be forwarded to the application layer. तो वाइस वर्सा आपको पता चलता है. The transport layer of the sender and the receiver provide transmission services for their application layer. So basically simple protocol तो आपको पता है, ये sender, receiver और and they send the packet. सिंपल प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने पहले देखा था. थोड़ा सा जो ट्विस्ट है, जो थोड़ा सा चेंजेस था, वो हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में था. What it does basically, because this is the connection oriented protocol, as you know that this is the connection oriented protocol, and connection oriented protocol always wait for the acknowledgement. Okay, so it stop and wait for the acknowledgement to send the next packet. ये भी आपको पता है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रोटोकॉल जो कि इसका नाम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, एंड विच यूजेस बोथ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. ओके, error control and flow control are maintained by this particular protocol so that error and flow can be maintained. And both the sender and receiver using the sliding window of size 1. Now what does this mean? ठीक है, मैं रिपीट करने का एक पर्पस ये भी है कि few things which are still which are not understood, so can it can be understood over here. Okay, so the window size is 1. It means that the window size 1 is mean that both are having the buffering capacity. दोनों के पास में जो queuing capacity, उनके पास में जो line maintain करने की capacity है वो है 1. Okay, it means that at a time they can keep only one packet in the buffer. Okay, window size 1 होने का मतलब ये है they can keep one packet in the buffer at a time. ठीक है, तो ये हो गई उनकी विंडो साइज. पैकेट एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक अंदर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है. एक की कैपेसिटी, ऐसे नहीं कि लाइन लगा के बैठे हैं 4 5 8 10 लोग 15 लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं करते हैं. इट मेंटेन ओनली वन कैपेसिटी, स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज 1. ओके, तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, जब जब भेजेंगे तो एक को भेजेंगे, वहाँ पे रिसीव करेंगे तो एक को रिसीव करेंगे. तो सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर भी. The sender sends one packet at a time and waits for an acknowledgement before sending the next one. That already we know. To detect corrupted packet, we need to add the checksum. And regarding the error correction, regarding the error control, it uses the checksum. Okay, checksum use करे, CRC use करे, हमको वो लेना देना नहीं. अलग अलग वर्जन अलग अलग यूज करते हैं, but they have to use for error detection and correction. They have to use any error detection and correction mechanism. अब वो कुछ भी यूज करे, checksum यूज करे, CRC यूज करे. When the packet arrives at the receiver side, it is checked. If it is checksum is incorrect, then packet is silently discarded. आपको पता है, अगर नहीं सही है तो डिस्कार्ड करते हैं और अगर सही है तो एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, द साइलेंस ऑफ द रिसीवर. जब रिसीवर आपका इट विल नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट, when it will not send the acknowledgement, then what your sender will think about it. Your sender will think that my packet has been lost somewhere. Okay, cause of the corrupted packet or cause of any reason. Okay, the timer out, कंजेशन बीच में या कुछ भी हुआ हो, बट मेरा पैकेट बीच में लॉस हुआ है. व्हाट इट हैज टू डू, इट हैज टू रीसेंड द पैकेट. ओके, तो टाइमर लगाते हैं. अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में याद दूंगा आपको, वही टाइमर की बात है. इफ द टाइमर एक्सपायर्स, द सेंडर रीसेंड द प्रीवियस पैकेट अज्यूमिंग दैट ईदर द पैकेट वाज लॉस्ट और करप्टेड. ओके, तो वे जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स. रिपीट करने से कुछ चीज़ें नई भी समझ में आती हैं.
So this means that the sender needs to keep a copy of the packet until its acknowledgement arrives. The sender has to keep a copy of the packet at its side cause it can happen that it has to resend the packet. हो सकता है उसको पैकेट रीसेंड करना पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक कि एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता, जब तक कि एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता तब तक क्या करना पड़ेगा, आपके सेंडर को उस पर्टिकुलर पैकेट की एक कॉपी अपने पास में स्टोर करके रखना पड़ेगी. ओके, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, हम लोग ने ये डायग्राम भी देखा था लास्ट टाइम. एंड यू कैन सी द विंडो साइज इज वन, ओनली वन. मतलब जब डेटा सेंड करेगा तो उसमें भी कितना, उसमें भी कितने पैकेट रहेंगे, एक पैकेट रहेगा. जब मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोग को कर्सर से. सो दिस इज द सेंड विंडो. ओके, दिस इज द, इट इज हैविंग साइज वन, विंडो साइज वन. विंडो साइज वन मतलब कि सेंडर क्या करेगा, एक टाइम पे एक पैकेट को उस विंडो में रख के भेज सकता है. ठीक है. एंड यू आर रिसीविंग साइट, your receiving terminal is also having window size, sorry, not receiving window size as 1. Okay, so what will happen, if it is having size 1 then it can receive only one packet. तो वन पैकेट रिसीव करेगा, उसको लेगा और प्रोसेस करेगा, ज़्यादा नहीं रख सकते. तो ये एक चीज़ हम लोग को नहीं पता चली इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. बट द in stop and wait protocol, the send window and the receiving window size is always 1. Okay, अभी मतलब कहीं कहीं पर विंडो साइज 1 रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं. आगे एक प्रोटोकॉल है आपका, आपका आगे एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं गो बैक एंड प्रोटोकॉल. उसमें भी कहीं तो आपका ना, तो विंडो साइज को 1 रखते हैं, रिसीविंग को 1 रखते हैं, सेंडिंग को मैनी रखते हैं. तो इट मे ऑल्सो हैपन दैट एट द सेंडिंग साइज and at the receiving size the window size are not same. In this case, that is in the stop and wait protocol, which is the connection oriented protocol. It maintain the window size as 1. It has restrict the thing that window size is always 1 for sender and the receiver side. Stop and wait protocol regarding flow control and error control कहता है flow control कैसे maintain करते हैं, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा जब तक भेजेंगे नहीं. तो ये इससे हम लोग फ्लो मेंटेन कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि रुकेंगे रुकेंगे तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लो जो रहेगा वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा. वरना एक के बाद में एक के बाद में अगर सेंड करते रहेंगे, सो व्हाट विल हैपन, नो द पैकेट विल बी सेंड वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन. सो देयर विल बी अ पाइपलाइनिंग और देयर विल बी अ समथिंग लाइक अ लाइनिंग. ओके, एक के पीछे एक लाइन लगा देंगे, सो कंजेशन में आकर. सो ये फ्लो कंट्रोल को क्या करना है, मेंटेन करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, सिंपली वी हैव फोर्स each and every sender to receive the acknowledgement first and then send the next packet. So according to this mechanism what will happen, your flow control will be maintained. हो गया, एक काम हुआ, मतलब बोलते हैं ना सांप भी मर गया और लाठी भी टूटी. तो ऐसे हमारा काम भी हो गया और मैकेनिज्म हमारा अप्लाई भी हो गया और कुछ एरर भी नहीं आएगा. एरर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूजिंग एनी एरर चेकसम, कुछ चेकसम है, सीआरसी वगैरह आप लगा सकते हैं. एंड यू कैन रेस्ट्रिक्ट द थिंग्स लाइक if you receive the packet, if you receive the packet with the error, then you can silently discard it. Okay, if the packet is okay then you can receive it. So that's a simple funda behind this error control. I have put some miscellaneous topics, okay, for you people, so that जो topics हमारे छोटे छोटे, मैं ये सारे ये जो आपका है सिंपल एंड स्टॉप इन वेट प्रोटोकॉल रिपीट करने का पर्पस भी ये था कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को वापस से नहीं दिखेंगी. ओके, so sequence number है and after that acknowledgement number है. I told you about that sequencing and acknowledgement. You know the sequencing सारे पैकेट्स को नंबरिंग वगैरह करते हैं. acknowledgement नंबर भी प्रोवाइड करते हैं. बट यहाँ पर acknowledgement पता है, acknowledgement नंबर क्या होता है वो भी देखेंगे. So the sequence number first. Okay, basically your sequence number is used to prevent the duplicate packets. जाहिर बात है, इफ़ यू नंबर ईच एंड एवरी वन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑल हैव बीन गिवन अ रोल नंबर. ओके, या इन एग्जामिनेशन you all are given with the seat number. Okay, and you all are provided with the hall ticket. Okay, so anyone from other college, anyone from other outside the college cannot enter into the examination hall because he is not having the hall ticket or seat number or roll number. क्योंकि हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट लोगों को अंदर एंट्री करने से बचाने के लिए हम लोग ने वो चीज़ किया था. द सेम थिंग्स वापस वही हो कि टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट पैकेट, या एक मतलब होता है ना, एक पैकेट गया सेंडर से रिसीवर को गया, मिला,
सॉरी, यहाँ से यहाँ गया, रिसीवर को मिला, रिसीवर ने रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। अब क्या हुआ, वो पहुंचा देर से या फिर टाइमर एक्सपायर हो गया, रास्ते में आते आते क्या हो गया, वो पैकेट कहीं तो लॉस्ट हो गया, चलो ठीक है। सेंडर ने पैकेट सेंड किया, रिसीवर को मिला, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं तो खराब हो गया, रास्ते में कहीं तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो सेंडर के हिसाब से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मतलब वो पैकेट अभी सेंड नहीं हुआ है। रिसीवर के हिसाब से वो पैकेट उसको मिल चुका है, ठीक है। तो सेंडर क्या सोचेगा, मुझे पैकेट रीसेंड करना चाहिए, सेंडर पैकेट रीसेंड करेगा। जब सेंडर पैकेट रीसेंड करेगा तो रिसीवर बोलेगा भाई साहब ये तो पैकेट मुझे मिल चुका है, रिसीव हो चुका है। तो उसको पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस नंबर। ऑलरेडी हमारे पास में ये पैकेट, ये सीक्वेंस नंबर का पैकेट तो ऑलरेडी है, भाई तो क्यों आ रहा है फिर। वो क्या करेगा, उसको सिंपली डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। तो सिंपली डिस्कार्ड करेगा और उसको लूप को किसी ना किसी तरीके से क्लोज करेगा, वरना वापस से फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा सेंडर को। तो फिर वो बोलेगा भाई वापस से मेरा पैकेट लॉस हो, वापस सेंड करेगा। तो वो उसका भी मैकेनिज्म है ऑलरेडी, उसका भी प्रोविजन होता है, सो दैट योर सेंडर विल बी नोटिफाइड अबाउट दिस पैकेट विच हैज ऑलरेडी सेंट, ठीक है। तो वो उसका प्रोविजन होता है। तो बेसिकली सीक्वेंस नंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट पैकेट्स द प्रोटोकॉल यूजेस सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, दो नंबर्स यूज होते हैं। तो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कैसी इन लोग की इंपॉर्टेंस है। अ फील्ड इज एडेड टू द पैकेट हेडर टू होल्ड द सीक्वेंस नंबर। पैकेट के अंदर एक छोटी सी फील्ड होती है सीक्वेंस नंबर की, जहाँ पर पैकेट का सीक्वेंस नंबर होता है, ओके। वन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस नंबर। ये तो रेंज तो कुछ भी हो सकती है, देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल वी आर द ह्यूमन बीइंग, सो ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 2000 2013 14 सब चलते रहोगे, ठीक है। अगर ये आपका कंप्यूटर है तो हाउ इट कैन गिव द सीक्वेंस नंबर। फॉर एग्जांपल योर पैकेट हैज गिवन सम अल्फा न्यूमेरिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस नंबर ए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक अल्फा न्यूमेरिक रोल नंबर असाइन किया गया है 16 DCO या 16 CO 14 16 CO 01, तो ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, इट कंटेन्स अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक। सो ऐसा इसमें भी हो सकता है योर सीक्वेंस नंबर। अब एक्चुअल में सीक्वेंस नंबर क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, न्यूमेरिक होती है, दैट वी डोंट नो, बट उनका कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर होता है। इफ यू आर गिविंग द फर्स्ट पैकेट एज द सीक्वेंस नंबर एज 1, या फिर उसको आप दे रहे हैं अगर x अगर कभी सीक्वेंस नंबर दे रहे हैं, देन द नेक्स्ट पैकेट मस्ट हैव द सीक्वेंस नंबर एज x+1। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वही चीज यहाँ पर लिखा है। अज्यूम वी हैव, यू कैन गो थ्रू द लास्ट स्टेटमेंट, assume we have used x as the sequence number, we only need to use the x+1 after that. So that's a simple concept, okay। अगर आप कोई अल्फा न्यूमेरिक भी यूज कर रहे हो तो उसके सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे 16CO01 16CO02 3 4 5 6, और उसके बाद में फिर आपका CO यहाँ पर है, तो CO के बाद में CO, जैसे फॉर एग्जांपल CO है तो O के बाद में जो कैरेक्टर आता है वो आ जाएगा, वो कंप्लीट हुआ तो फिर आपका ये वाला चेंज होगा। तो इन दिस वे जो भी चेंज होना है चेंज होता रहेगा, and that the next packet will get the next number, okay। Basically those with the help of simple example, if any packet is given the sequence number as x, then the next packet will be x+1, that's all, okay। So this is regarding the sequence number। सीक्वेंस नंबर के बारे में कुछ और थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं उसको। assume that the sender has sent one packet, okay। The sender has sent one packet with the sequence number x, okay। On the top you can read it, assume that the sender has sent one packet with the sequence number as x। So तीन चीजें हो सकती है, three things can happen, वो चीजें मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया हूँ, ठीक है। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ सीक्वेंस नंबर को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, द वेरी फर्स्ट केस विच कैन हैपन इज दैट योर पैकेट हैज रीच्ड टू द डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड एंड यू हैव गॉट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर आल्सो, दैट्स वेरी गुड, okay। So when you will get the acknowledgement, your acknowledgement will announce you, your acknowledgement for packet x will announce you that you have to send the next packet as x+1, okay। The packet arrives, you can read the point number 1, the packet arrives safe and sound at the receiver, sender ने send किया, receiver को मिला, receiver send the acknowledgement, receiver send the acknowledgement arrives at the sender side causing the sender to send the next packet number x+1। तो ये आपका सेंडर ने पैकेट भेजा, रिसीवर को मिला, रिसीवर ने लिया,
अब रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भी इसको मिल गया। जैसे ही x का एक्नॉलेजमेंट गया, योर सेंडर विल सेंड द नेक्स्ट पैकेट ऑफ नंबर x+1। दैट्स अ सिंपल वन। हो गया, हो गया आपका पहला केस। सेकंड केस में क्या होता है, पैकेट इज करप्टेड और नेवर अराइव्स एट द रिसीवर साइड। सेंडर, पैकेट गया, रास्ते में खराब हो गया, क्या होगा, द सेंडर रीसेंड द पैकेट नंबर्ड x, जो x नंबर का पैकेट था जो कि रास्ते में खराब हो गया, क्या करेगा, उसको वापस से सेंड करेगा, रीसेंड करेगा, ठीक है, बिकॉज अभी तक वो पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस, सेंडर से पैकेट सेंड किया, रिसीवर को मिला, रिसीवर ने ले लिया। अब आपका रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट रास्ते में खराब हो गया, एक्नॉलेजमेंट रास्ते में खराब हो गया। अब क्या करेंगे, नोट दैट द पैकेट हेयर इज डुप्लीकेट। अच्छा यहाँ पर पैकेट खराब हो गया। अब आपका सेंडर टाइमर आउट होने के बाद में योर सेंडर विल डू व्हाट, योर सेंडर विल रीसेंड द पैकेट बिकॉज इट हैज नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट। your send acknowledgement, your sender will is going to resend the packet, so it will resend the packet जब resend करेगा तो क्या करेगा, the sender resend the packet numbered x, सेम x नंबर का पैकेट वो वापस से भेजेगा, but note that the packet here is duplicate। उसको ऑलरेडी आपको मैंने अभी जो केस बताया पहले, आपका x नंबर का पैकेट सेंडर को से रिसीवर के पास में गया, रिसीवर ने इस पैकेट को रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट दिया, एक्नॉलेजमेंट रास्ते में खराब हो गया, गुम हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉजिकली अब सिचुएशन क्या है, सेंडर को पता है कि पैकेट एक्स नंबर का पैकेट अभी तक सेंड नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा जब तक समझेगा नहीं। आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, बहुत रूल्स वगैरह फॉलो करता है। और जो आपका जो रिसीवर है, रिसीवर को तो ये पता है कि मुझे एक्स नंबर का पैकेट रिसीव हो गया, मैंने एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिगियस सिचुएशन आती है। इस एम्बिगियस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए यू हैव अ सीक्वेंस नंबर। अब आपका सेंडर क्या समझेगा कि नहीं गया, सेंडर विल अगेन रीसेंड द पैकेट, when it will resend the packet and when it will be received by that particular receiver, then it will say भाई मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मार्क करेगा और एक्नॉलेजमेंट करके कुछ तो उसको भेज देगा। देयर मस्ट बी सम प्रोविजन कि जो उसको बताएगा कि भाई वी हैव रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस एक्स नंबर ऑफ पैकेट, नाउ यू कैन सेंड द x+1, मतलब आगे का पैकेट आप भेज सकते हो। So that is the simple thing which is possible with the help of this sequence number. I hope you people are getting, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी बहुत सिंपल है। Since the sequence number must be suitable for both data packet and acknowledgement, तो sequence number तो उसी के लिए होता है। We use this convention and the acknowledgement number always announce the sequence number of the next packet expected by the receiver। थोड़ा सा और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। If the packet 0 has arrived safe and sound, the receiver send an acknowledgement with acknowledgement 1। समझ में आया नहीं, आपका सेंडर, आपका रिसीवर, ठीक है, सेंडर ने पैकेट नंबर 0 भेजा, पैकेट नंबर 0 मिल गया रिसीवर को। आफ्टर रिसीविंग पैकेट 0 यूर रिसीवर विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ तो भेजेगा। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जब भेजेगा तो वो कौन सा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा। मतलब सेंडर को ये समझेगा कि मुझे उसको जो इसके पहले वाला है वो रिसीव हो चुका है, अब उसको नेक्स्ट पैकेट नंबर 1 भेजना है। तो ये उसके एक आगे का वो एक्नॉलेजमेंट करता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगेन वापस रीड करो, इफ पैकेट 0 हैज अराइव्ड सेफ एंड साउंड, if packet 0 has arrived safe and sound, the receiver send an acknowledgement with acknowledgement 1, meaning packet 1 is expected next now, okay। तो सिंपल, अगर पैकेट 0 रिसीव किया उसने तो पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, it is expecting packet number 1 now, okay। if your receiver is sending acknowledgement, if your receiver is receiving packet number 422, if your receiver is receiving packet number 422, then it will send the acknowledgement with the number 423, so that your sender will understand that now receiver is expecting packet number 423। मतलब सिंपल आगे का एक वो एक्नॉलेजमेंट करते हैं, दैट्स ऑल, कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं है। तो सीक्वेंस नंबर
प्रॉपरली आपके पैकेट्स को सीक्वेंसिंग करने के लिए एंड असेंबलिंग के लिए काम आता है. Acknowledgement number, which packet has to be sent next, that will be understood by the sender with the help of this acknowledgement number. So these two numbers are used in order to make the thing simple in the transmission. Okay. Pipelining. Pipelining is a very simple concept. एक एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, घर में देखो रोटी बनाते हैं, घर में रोटी बनाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव एन आइडिया अबाउट नॉट रोटी बनाना, बल्कि यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस पाइपलाइनिंग. व्हाट इज बेसिकली पाइपलाइनिंग? होता है ना, आपके घर पे होता है पाइप होता है, तो पाइप में आप जब टैप ओपन करते हो तो पानी मिलता है, ठीक है. तो क्या होता है, वो जो पीछे जो लाइन, जो पीछे जो पानी खाली हो रहा है ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी दूसरा पानी आके रुकता है. देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट होके आता है नाम. सो इसका इसका नाम भी यहीं से कुछ आया है. तो आपने जब टैप ओपन किया, when you open this tap, so and you will use the water, so the gap the gap which is now maintained, so वो गैप के अंदर दूसरा पानी, दूसरा वाटर ऊपर से टैंक में से आके जमा होके वहां पर रुकेगा, बिकॉज नेक्स्ट अब उनका नंबर है. ओके, तो वो आके वहां पर रुकेगा. घर पे आप लोग रोटी बनाते हैं, आप लोग नहीं, घर पे ज़्यादातर लेडीज़ बनाती है, बट स्टिल, तो जब रोटी बना के जब उसको हम लोग उसको तवे पे डालते हैं, ओके, सो वहाँ पर डालने के बाद में जब उसको सेकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पीपल डोंट सिट आइडल. ओके, हमारे घर की जो लेडीज़ होती हैं तो वो मतलब आइडल नहीं बैठेंगी, या फिर सिंपल इसका देखते नहीं बैठेंगी, देखते नहीं बैठेंगे कि चलो हाँ भी आराम से बैठे रहो, अभी जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक कुछ करेंगे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है. कि फिर क्या करना है, जब तक कि वो रोटी वहाँ पर तवे पर है, या फिर जो उसको मतलब वहाँ पर हो रही है, सो दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट रोटी. ओके, तो वो बेलन और उससे फिर दूसरी रोटी प्रिपेयर कर, जब तक कि वो रोटी का मतलब अच्छे से हो नहीं जाए, तब तक ये लोग दूसरी रोटी रेडी कर लेते हैं, वो निकालते हैं, फिर ये रखते हैं. सो दे हैव मेड द थिंग्स नेक्स्ट थिंग इन द पाइपलाइन. ओके, सेकंड एग्जांपल. तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट आपके पाइपलाइनिंग का भी है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ सेंडर इज सेंडिंग वन पैकेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो पैकेट जब सेंड किया है, सो नाउ योर सेंडर इज वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट. ऑब्वियसली योर सेंडर इज वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट. तो वाइल वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, ये जो टाइम आपका जो वेस्ट हो रहा है, इस टाइम को बोले यूटिलाइज करो. कैसे यूटिलाइज करेंगे? बाय सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट. ठीक है, अब क्या भाई, एक काम करो, आप दूसरे एक दो पैकेट और आप पीछे से सेंड करो. मतलब आपका फॉर एग्जांपल एक पैकेट सेंड की, सेंडर रिसीवर, सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया, ठीक है. सेंड करने के बाद में नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग, सेंड किया मतलब जब यहाँ से पैकेट आपका निकल गया, उसके बाद से वो अभी क्या हो गया, आइडल हो गया, ठीक है. तो उसको हम लोग सोचे कि आइडल नहीं रखना है, उसको हम लोग को आइडल नहीं रखना है. क्या करना है उसको उसको हम लोग को यूटिलाइज करना है. कैसे यूटिलाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द पाइपलाइनिंग. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग, what is possible, we can send in that particular time, the idle time, we can send the next packet. Okay, और जब नेक्स्ट पैकेट सेंड करेंगे तो वो टाइम हमारा यूटिलाइज होगा. और जब आपको उसका फर्स्ट वाला पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, तब फिर आपका फिर उसके बाद में सेकंड का मिलेगा, फिर थर्ड का मिलेगा, आपको फिर एक एक करके एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएंगे. और जहां कोई पैकेट का प्रॉब्लम आया, वहां फिर आप थोड़ा रुक के देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइनिंग, बेसिकली there is no pipelining in the stop and wait protocol, because in the stop and wait protocol we know that stop and wait, when you send the packet, then stop and wait for the acknowledgement. Okay, so this stop and wait protocol does not allow the pipelining concept. बट ऐसे ही बैठना और ऐसे आइडल बैठना, तो ये कोई मतलब वो नहीं हुआ. सो दे थिंक फॉर द न्यू प्रोटोकॉल, एंड दे केम अप विद द नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज गो बैक एन प्रोटोकॉल. Okay, so with the concept of this pipelining, this go back n protocol was implemented, and in go back n protocol the same concept is used as well. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं go back n protocol को. So basically this go back n protocol, go back and send n number of protocol. मैं आपको उसका एक जो भी इसका समरी है वो मैंने आपको बता दिया. Go back, if anything goes wrong, if there's an error, then go back and send n number of protocols. Okay, n number of protocol define करेंगे हम लोग आगे चल के. So basically this protocol is to improve the efficiency of the transmission. Data आपके send हो रहे हैं, sender से receiver जा रहे हैं, तो जो transmission हो रहा है, you have to improve the efficiency.
एफिशिएंसी आपका फॉर एग्जांपल 5 मिनट के अंदर आपने एक ही पैकेट सेंड किया, भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है। या आपने 1 मिनट में एक ही पैकेट सेंड किया, हालांकि पैकेट सेंड करने के बाद में आपके पास में अपने पैकेट 1 सेकंड में सेंड कर दिया, एंड यू आर हैविंग आई थिंक 59 सेकंड, 58-59 सेकंड आपके पास में बाकी थे दूसरे पैकेट सेंड करने के लिए, मगर बट आपने पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिए। यू हैव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर ट्रांसमिशन। ओके, इस ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट। कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है। आप लोग एक बार समझ लोगे तो आप लोग बोलेंगे सर आप लोग इसका आंसर खुद ही आराम से लिख सकते हैं। एक बार रीड करने के बाद में आप लोग लिख सकते हैं। गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव रिपीट, एग्जाम में गो बैक एंड ज्यादा आता है, ठीक है। सो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन वी हैव टू फिल द पाइप। जैसे कि आपका पानी है ना, उस पर्टिकुलर टैप, उस पर्टिकुलर पाइप में से आ रहा था और टैप के थ्रू बाहर निकल रहा था, तो यू हैव मेक यूज ऑफ सम वाटर। सो जो आगे का जो पानी था वो आपने यूज किया, जो पीछे था वो आगे आ गया और उसकी जगह पर और कोई आ गया, ठीक है। सो मल्टीपल वाटर ड्रॉप्स आर एक्यूमुलेटिंग in the pipe and you are using via tap. Okay, so the same thing happens over here. To improve the efficiency of transmission, to fill the pipe, multiple packets must be in the transition. जैसे multiple drops बीच में पीछे outstanding थे, multiple drops outstanding थे, वैसे multiple packets must be in the transition while the sender is waiting for an acknowledgement. When it is sending when it has already sent one packet and it is waiting for the acknowledgement of the same packet, then it can send the next packet. Okay, पीछे से रेडी करके, जैसे हम लोग बताया ना आपको मैंने रोटी का कॉन्सेप्ट, दूसरी रोटी उन्होंने प्रिपेयर करके रख दिया, जब तक कि वो रोटी तवे पर सेक रहे हैं, जैसी हटी वैसी सेकंड। वरना अगर आप बोलेंगे नहीं पहले रोटी जब तक हो नहीं जाती रखेंगे, फिर आटा लेके फिर आप उसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, सो इट टेक्स मच टाइम, ठीक है। तो आपने दूसरी को पाइपलाइनिंग में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। So in other words, we need to let more than one packet be outstanding to keep the channel busy. अच्छा, इससे हमारा फायदा क्या होगा, हमारा जो यूटिलाइजेशन है, जो चैनल, जो हमारा मीडियम का जो यूटिलाइजेशन है, दैट विल बी इंक्रीज। ओके, अदरवाइज क्या हो भाई, क्या बोले 5 मिनट में कितने पैकेट सेंड किए, ओनली 5 पैकेट सेंड किए, और अगर आप गो बैक एंड यूज करते तो कितने सेंड कर पाते, अरे बहुत सारे सेंड कर लेते, कम से कम नहीं तो भी 5 के बजाय आप कम से कम 100 भी पैकेट सेंड कर सकते थे, बिकॉज यू हैव मच टाइम इन विच यू कैन सेंड नंबर ऑफ पैकेट सेंड यूजिंग पाइपलाइनिंग। तो चलो फोकस करते हैं गो बैक एंड के ऊपर। सो इन अदर वर्ड्स वी नीड टू लेट more than one packet be outstanding to keep the channel busy while the sender is waiting for an acknowledgement. That's a visa, and this is called the go back end protocol. Basically this जो structure, जो arrangement है, this arrangement is done in the go back end protocol. The key to go back end is that we can send several packet, we cannot send only one packet as we have seen in the stop and wait protocol. In the stop and wait protocol we used to send only one packet and then we have to wait for the acknowledgement. क्या करना है, आइडल बैठना है, सिंपल, ऐसा सिंपल बैठना है, ठीक है। सो हम लोग को ऐसा करना नहीं है, बल्कि हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू मेक द थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट टर्न। ओके, तो हम लोग को नेक्स्ट पैकेट भेजना है पीछे के, तो कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। द की टू गो बैक एंड प्रोटोकॉल इज दैट वी कैन सेंड सेवरल पैकेट्स बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। सो ए पैकेट नंबर 1 आपने सेंड किया, अब उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने से पहले आप दूसरा पैकेट भी सेंड कर सकते हो। यू हैव अ प्रोविजन इन गो बैक एंड प्रोटोकॉल। ओके, बट द रिसीवर कैन ओनली बफर 1 पैकेट। मतलब रिसीवर अगर सिर्फ एक ही पैकेट को बफर कर सकता है, तो इसका मतलब रिसीविंग विंडो की साइज कितनी हुई, रिसीविंग विंडो की साइज कितनी हुई, कोई आंसर कर रहा है, नहीं आंसर। ऑब्वियसली साइज तो 1 ही रहेगी। जब आपका रिसीवर सिर्फ एक आपका रिसीवर सिर्फ एक पैकेट को बफर कर सकता है, तो उसकी साइज क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 ही होना चाहिए, ठीक है। सो इन गो बैक इन प्रोटोकॉल द रिसीविंग विंडो साइज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 ओनली। ओके, और सेंडिंग की जो साइज होती है, विंडो साइज होती है, दैट इज नॉर्मल, जो अपनी नॉर्मल होती है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। So but the receiver can only buffer 1 packet. We can keep a copy of the sent packet until the acknowledgement arrives. ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग ने इसमें क्या चीज नहीं देखे,
In Go backend protocol, we do not sit idle, and we do not wait for an acknowledgement and then send the next packet. This is not the situation in this case. What we do basically, we send the packet and then we can send several packets. We can send several packets before receiving the acknowledgement of the first packet. Okay, so that is the one thing. And second thing, जो receiving buffer है, जो receiving window size है, that is restricted to 1. You can see with the help of this diagram देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. This is the आपका sender and this is the receiver. Okay, आपका सेंडर यहाँ से सेंडिंग मतलब भेज रहा है, सेंड कर रहा है, पैकेट सेंड हो रहे हैं. देखो ये है जो फॉर्मेट है, ये पैकेट का फॉर्मेट है. एक्नॉलेजमेंट नंबर्स में है, चेकसम वगैरह है, पैकेट है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से आ रहा है. ठीक है, पैकेट ऊपर से जाते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से आते हैं, आपको पता है. दिस इज द सेंडिंग विंडो एंड दिस इज द रिसीविंग विंडो. याद है आप लोग को, ये सेंडिंग विंडो के साइज हम लोगों ने वेरी किया है. ठीक है, मतलब इसको हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है. इन गो बैकएंड प्रोटोकॉल द सेंडिंग विंडो साइज इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन कीप इट वेरी. ओके, एंड एट द रिसीविंग विंडो साइज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1. मतलब आप क्या कर सकते हैं, गो बैकएंड के अंदर खाली एक को ही बफर में रख सकते हैं. तो यहाँ पर उसने उसको पिक्टोरियल में बताया है. ठीक है, सेंड विंडो मतलब ये जो आपकी विंडो है ना, ये जहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे कर्सर से, सेंड विंडो. सेंड विंडो में देखो आपके एक पैकेट वो है जिसको आप सेंड कर रहे हो. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इजीली आप लोग समझ जाएंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट पैकेट टू सेंड एंड दीज आर द आउटस्टैंडिंग वन, पीछे वाले. ठीक है, तो देखो हम लोग पैकेट भेजें, पैकेट नंबर 1 भेजा, फिर पीछे से 2 भेजा, फिर 3 भेजा, फिर 4 भेजा. अब 4 भेजने के बाद में अचानक क्या हुआ, फर्स्ट पैकेट का क्या आ गया आपको, एक्नॉलेजमेंट आ गया. फिर आपने पैकेट नंबर 5 भेजा, फिर 6 भेजा, पैकेट नंबर 2 का एक्नॉलेजमेंट आ गया. 6 भेजा, 7 भेजा, 8 भेजा, थर्ड का आ गया, फोर्थ का आ गया. तो यहाँ से आप भेजते जा रहे हैं, यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलते जा रहे हैं. ठीक है, सो योर यूटिलाइजेशन ऑफ द चैनल इज डन वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर गो बैक. जरूरी नहीं हर चीज अच्छी होती है, हर किसी के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, so as you can see in the diagram that your sending window size is variable. Okay, so these are the outstanding packet and these are the next to be sent, and you are having only one packet की capacity at the receiving. It means that के window जो हमारी size है वो only 1 है at the receiver side. ठीक है, मतलब you can store, you can keep, you can buffer only 1 packet at a time at the receiving side. Send window में क्या है, the send window is an imaginary box covering the sequence number of the data packet that can be transit or can be sent. तो यहाँ से जो आपको जो डेटा सेंड करना है, जो पैकेट सेंड करना है, कहाँ डालेंगे उसको, सेंड विंडो में डालेंगे. फर्स्ट पॉइंट. रिसीव विंडो, the receive window make sure that the correct data packets are received. so receive packet में for example यहाँ से डेटा, यहाँ से पैकेट आपका निकला, यहाँ से पैकेट आके रिसीव विंडो में आया. तो रिसीव विंडो क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसको जो भी कवरिंग उसका पैकेट वगैरह कवर हटाना है हटा के उसको अपने आगे फॉरवर्ड करेगा. हो गया, मतलब उसको प्रोसेस करेगा बेसिकली. ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा. तो रिसीविंग विंडो का ये काम है. और इन गो बैकएंड प्रोटोकॉल द साइज ऑफ द रिसीविंग विंडो इज ऑलवेज 1. ये भी हो गया हमारा सेंड विंडो, रिसीव विंडो. रिसेंड पैकेट, अगर कहीं पर टाइमर एक्सपायर होता है तो क्या करना पड़ेगा, सेंडर को ऑब्वियसली रिसेंड करना पड़ेगा. मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर है, यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना. भी लास्ट है, 2-3 मिनट लगेंगे, विल वाइंड इट अप. फॉर एग्जाम्पल सपोज द सेंडर हैज ऑलरेडी सेंड 6 पैकेट. तो भाई साहब पैकेट नंबर 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया. ठीक है, अब ये 6 पैकेट चले गए और 6 पैकेट के अंदर देखो यहाँ पर SF है, SN है, दे हैव यूज देयर टर्म्स. ओके, SF आपका और SN आपका ये नेक्स्ट पैकेट के लिए और F है फर्स्ट आउटस्टैंडिंग के लिए. तो ये अगर आप नहीं भी ध्यान में रखते हैं तो कोई इशू नहीं. ठीक है, ध्यान में क्या रखना है आपको मैं बताता हूँ. सिंपल वर्ड्स में अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो दैट विल बी गुड. ओके, ओके, सो 6 पैकेट इज ऑलरेडी सेंड. ओके, बट यहाँ पर अभी क्या हुआ, एक टाइमर एक्सपायर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 6 पैकेट वगैरह जा रहा होगा या फिर जो भी है, तो टाइमर एक्सपायर. अब वो कौन से पैकेट की वजह से हुआ ये भी यहाँ पर पता नहीं, लेकिन आपकी SF जो साइज थी वो थी 3. SF साइज 3 थी, इसका मतलब क्या था कि आपका थर्ड पैकेट के पहले वाला
मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपका थर्ड पैकेट से पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। ओके, SF is equal to 3 means that you have already received two acknowledgement, that is for packet number 1 and packet number 2। SF is equal to 3 का ये मतलब, अगर SF equals to 4 होता तो मतलब 3 पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है सेंडर के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर केस क्या हुआ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एकदम ध्यान से सुनो। खैर यही खाली मेन कॉन्सेप्ट है आपके गो बैक एंड में, गो बैक एंड सेंड एन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या हुआ, द सिचुएशन इज दैट यू हैव ऑलरेडी the sixth packet is already sent। okay, you have already sent 6 packet, but कुछ टाइमर एक्सपायर हो गया, ठीक है। किस पैकेट का हुआ अभी पता नहीं, किस पैकेट का हुआ नहीं मालूम, लेकिन टाइमर एक्सपायर हो गया। टाइमर एक्सपायर हो गया तो मतलब क्या होगा फिर, भाई साहब आपको पैकेट रीसेंड करना पड़ेगा। तो अब आपका प्रोटोकॉल कंफ्यूज्ड, आपका प्रोटोकॉल अब कंफ्यूज, कौन सा प्रोटोकॉल आपका, कौन से पैकेट का आपका टाइमर एक्सपायर हुआ, किसको भेजूं, बिकॉज आपने तो यहाँ पर बहुत गर्दी जमा करके रख दी है। कैसे, एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक भेजते रहो। जब सारे पैकेट एक के बाद में एक जा रहे हैं तो आपका प्रोटोकॉल कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से पैकेट को रखूं और कौन से पैकेट का मैं उसको मैं रीसेंड करूं। तो वो भी हो गया कंफ्यूज। वो क्या करेगा भाई, मुझे बताओ कितने पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। तो आपका सेंडर बोलेगा मेरे को खाली 2 पैकेट का मतलब 2 पैकेट का मुझे एक्नॉलेजमेंट आया है। ओके, तो बोलेगा एक काम करो, जब 2 का आया ना तो एक काम करो, 2 के बाद के जितने पैकेट हैं सबके सब रीसेंड मार दो। नुकसान है कि नहीं है, नुकसान है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रीसेंड ऑल द पैकेट, जिन पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिल गया है वो पैकेट को उसके आगे से, जैसे मैं यहाँ पर उसने यूज किया SF फर्स्ट आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आपका जो है तो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग से लेकर जितने भी पैकेट उसने सेंड किया सबको रीसेंड मार दो उठा के। यानी कि उसमें क्या हो गया, गधे भी आ गए घोड़े भी आ गए, ठीक है। तो ये इसमें 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 हमारा नुकसान है। आप लोग को समझ में आ रहा है आई थिंक, कोई आप लोग का रिस्पॉन्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं फ्लो में जा रहा था, इसके लिए मैं आप लोग को पूछा भी नहीं बीच में। समझ में आए आप लोग को, थोड़ा पिक्चर बाकी है अभी भी। आवाज आ रही नहीं मेरी, या पूरा लेक्चर ऐसे ही चला गया। आ रही है सर। आ रही ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, गो बैक एंड, हाँ सर। ओके। सो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आप लोग को। मैं ये जो सब लिखा हुआ है सबको छोड़ दो, सिंपल। आपके सेंडर ने 6 पैकेट भेज गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी जो 6 पैकेट भेजा तो 6 पैकेट में से इस 6 पैकेट अभी जा रहा है भेजे। अब तो कहीं तो कुछ एरर आ गया, पैकेट लॉस हुआ, कहीं तो टाइमर एक्सपायर हुआ, anything can happen। Okay, so cause of anything issue, any problem, now you have to resend the packet। now which packet you have to resend, you don't know about that। okay, which packet और कौन सा पैकेट मतलब आपको भेजना है ये आपको पता नहीं। तो आप क्या करोगे, the packet which you have already received an acknowledgement for, the packet which for which you have already received the acknowledgement, you will leave those packet। so in this case our SF value is equal to 3, that means the first outstanding value is 3। मतलब जो आपका थर्ड वाला पैकेट था वो पहला आउटस्टैंडिंग पैकेट था। तो वहां से हम लोग जितने भी पैकेट है, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्योंकि आपने 6 तक सेंड किए आपने, सो थर्ड को भी ले लेंगे, 4 5 6। फर्स्ट रो का एक्नॉलेजमेंट अच्छे से आ चुका है बिकॉज SF इक्वल्स टू वैल्यू 3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वापस से रीसेंड करेंगे। तो आपने 3 4 5 6 4 पैकेट को रीसेंड किया। अब 4 पैकेट को वापस रीसेंड किया तो मतलब क्या हुआ, go back and send n number of protocol n number of packet, go back and resend n number of packet। ठीक है, तो हम लोग रीसेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ा, रीसेंड करना पड़ा पैकेट, और वो भी कितने पैकेट को, n नंबर ऑफ पैकेट को रीसेंड करना, इसलिए इसका नाम भी इसके लिए ऐसे दिया गया। तो द सेंडर गोज बैक एंड रीसेंड पैकेट नंबर 3 4 5 and 6, that is why the protocol is called go back and protocol। okay, on the timeout the machine goes back and location and resend all packet, the statement which are in the dark, this is the very general statement। ठीक है sorry। so this is the whole and sole concept in the go back and protocol, baki everything is same, you can see, you have seen, this is the introduction part।
This is the diagram, and in this we have explained what is send window, what is receive window, what is resending of packet, and then with the help of example how the things happens in this particular go back and protocol, how the packets are resent in go back and protocol. Okay, so ये हम लोगों ने लास्ट में समझा है. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बाद में वापस बताना. आई कैन एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 मार्क के, सिंपल फ्री के मार्क्स हैं, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं. आई एम श्योर अबाउट इट. ओके, द नेक्स्ट इज सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल. इसमें कुछ है नहीं, इसके लिए मैंने इसका स्टार्ट किया. आई नो द टाइम इज 10:55. इसमें कुछ है नहीं. द ओनली थिंग इज दैट इन द सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल इज दैट यू कैन जस्ट रीड, ये वाला स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो. Another protocol called the selective repeat SR protocol has been devised that the name implies resend only selective packet. आपका go back and क्या करता है, go back and send n number of packet. अब उसमें 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 15 आए, कितने भी आए, लेकिन रिसेंड सबको करेगा. SF की वैल्यू से लेकर जितने सेंड हुए सबको रिसेंड कर देगा. गो बैक एंड, बट सेलेक्टिव रिपीट ऐसा नहीं करेगा. सेलेक्टिव रिपीट क्या करता है, सेलेक्टिव रिपीट ओनली रिसेंड ओनली सेलेक्टिव पैकेट. कौन सा सेलेक्टिव पैकेट रहेगा आपका, जो कि लॉस्ट हुआ है, दोज दैट आर एक्चुअली लॉस्ट. तो यही कॉन्सेप्ट उसके अंदर डिफरेंस है. ये इसका डायग्राम है. डायग्राम इज सिंपल इन विच द विंडो साइज फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर सेम. यहाँ पर सेम होती है साइज, यहाँ पर अलग अलग नहीं होती है. बट इन गो बैक एंड द विंडो साइज फॉर सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट सेम. द रिसीवर विंडो साइज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1. ये आपको याद रखना है. मैं ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग का बहुत टाइम ले लिया. सो यहाँ तक हम लोगों ने गो बैक, जो मेन हम लोगों ने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो गो बैक एंड प्रोटोकॉल पढ़ा है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच. आज किसी की आवाज़ ही नहीं आई, किसी की भी आवाज़ नहीं आई. तो आवाज़ दिया करो, आवाज़ तुम लोग निकाला करो कुछ, ताकि मुझे भी लगे कि मैं प्लीज स्टार्ट मार्किंग. And sorry for the delay. अच्छा, आप लोग को यूटी के बारे में तो अनाउंसमेंट हो ही गया है, नोटिस आ चुकी है आप लोग को. सो विल बी हैविंग फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स. ओके, पहला, सेकंड, थर्ड. पहला इंट्रोडक्शन वाला, सेकंड फिजिकल लेयर, एंड थर्ड डेटा लिंक लेयर. नहीं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ट्रांसमिशन मीडिया वाला है, और थर्ड डेटा लिंक लेयर है. तो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स आप लोग के रहेंगे एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, MCQ based Google form. सर कैमरा स्विच ऑन रखना पड़ेगा. उसके अंदर नहीं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एग्जाम तो नहीं आपका, तो देखते हैं भी. कुछ तो आया नहीं है उसके बारे में. यूनिवर्सिटी से सर्कुलर HODs को आया है, शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बैंक मिले. अब क्वेश्चन बैंक की अब्दुल करीम जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है. शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे एग्जाम के दिन, बाकी लेक्चर्स नहीं, एग्जाम के दिन बाकी लेक्चर्स नहीं होते हैं. एग्जाम आपका 19, 20, 21, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन का है एग्जाम आप लोग का. तो उस दिन आप लोग के लेक्चर प्रैक्टिकल्स नहीं होते. ठीक है,
just only one suggestion to you people, that try to wind up your submissions, your experiment, your assignments as early as possible, so that it will be announcing that important question क्या, अभी देखो इसके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के भी फायदा है, बिकॉज द थिंग विल बी इन द काइंड ऑफ एमसीक्यू बेस, और इतने सारे एमसीक्यूज तो दे नहीं सकते, तो इसके लिए खाली टॉपिक्स देंगे, सारे फैकल्टीज आपको टॉपिक्स ही देंगे, आपको जस्ट टॉपिक रीड करना है, टॉपिक में मेरे से पढ़ना है, एंड देन उसके बेस पर एमसीक्यूज रहेंगे, तो एमसीक्यूज कहाँ से करना है, मुश्किल विल हैंडल इट। आपका ये फर्स्ट टाइम में, आप लोग का लास्ट टाइम भी दिए थे ना आप लोगों ने, नहीं लास्ट टाइम आप लोग का यूटी दिए थे आप लोगों ने ऑनलाइन, नहीं ना, रीटेस्ट, हाँ रीटेस्ट का भी है, रीटेस्ट का भी अच्छा याद दिलाया आपने, रीटेस्ट का भी होगा आप लोग का, देखते हैं पहले होता है बाद में होता है, लेकिन रीटेस्ट भी होगा, ये गूगल फॉर्म बेस्ड ये समीर, हाँ आपने लास्ट टाइम ही दिया था। इट इज द डिपार्टमेंटल लेवल ऑप्शनल कोर्स, डिपार्टमेंटल लेवल ऑप्शनल कोर्स 1, ओके। आपका 5th सेमेस्टर से टी-लॉग शुरू हो जाता है, एमएस है और ए है, कुछ लोगों का ए है, कुछ लोगों का एमएस है, एडवांस एल्गोरिथम और मल्टीमीडिया सिस्टम। ओके, आई थिंक कोई और ज्वाइन करेगा इसके बाद किसका लेक्चर है, सो वो ज्वाइन करेंगे। 40 रिस्पॉन्सेज हो गए, आई एम क्लोजिंग द लिंक, एनीवन रिमेनिंग फॉर अटेंडेंस प्लीज लेट मी नो, anyone remaining for attendance please let me know, I'm closing the link, okay thank you so much। recording stop नहीं की